Okay, guys, so let's start and let me share the screen with you. आज थर्सडे है, मेरे पास और कोई क्लासेस है आपके साथ इस हफ्ते? सर एक मिनट चेक कर रहे सर। मैं भी चेक कर रहा हूँ, ठहरो। यस सर, कल है सर, कल है सर। कल एक क्लास है, ओके। चलिए ठीक है, आज एक है और कल एक है, तो हम ब्रिज प्रोसीजर गाइड कर लेंगे कल को। सो ये आपका है, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, वॉच कीपिंग इन पोर्ट नाउ। सर नहीं दिख रही। दिखनी चाहिए भाई, ऑलरेडी अपलोडेड है सब। हाँ जी, सबको नहीं दिखाई दे रही या किसी एक को नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है सर, दिख रहा है दिख रहा है सर। ठीक है सर। अच्छा जी, अब 40 लोग बोलेंगे दिख रहा है, तो फिर 10-15 मिनट तो निकल जाएंगे। एनीवे, सो ये है आपका वॉच कीपिंग इन पोर्ट। सो लेट्स कम टू 91 वॉच अरेंजमेंट्स। एंड व्हाट डज इट से रिगार्डिंग वॉच अरेंजमेंट? दैट जो भी आप वॉच अरेंजमेंट कर रहे हैं इन पोर्ट shall be adequate to ensure safety of life at sea, safety of life, safety of the ship, port environment. मतलब sufficient number of people should be there and they all should be capable of ensuring safety of life of the ship, port, environment, safe operation, ballasting, deballasting, machinery, deck, engine machinery, windlass, winches, जो भी उसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी होने चाहिए. Observe international regulations, national, international company के. Maintain order and normal routine of the ship. Then the master shall decide the composition. Number 2 में आ रहे हैं, 92 में. The duration of the deck watch depending on the conditions of mooring, type of ship, cargo operation, duties, rest hours, ये सब देखते हुए. If the master considers necessary, a qualified officer shall be in charge of deck watch. Necessary equipment to be arranged for efficient watch keeping. Similarly, the chief, ये general है, हाँ, watch keeping arrangement, general arrangements है. Similarly, engine room में भी, the chief engineer in consultation with the master shall ensure that engineering watch keeping arrangements are adequate to maintain safe engineering watch while in port. Right? और बस इतना ही आपको रखना है, ये 3000-2000 टन का ये engineers के लिए है. So these are the general watch keeping. अगर आपका जहाज 3000 किलोवाट हॉर्स पावर से ज़्यादा है या कम है तो वो अलग चीज़ हो गई. But general watch keeping क्या है? That you should have sufficient number of people on board to ensure safety of life, safety of the ship, environment, machinery, deck machinery, engine machinery, सब normal चल रहा है. उसके लिए sufficient number of deck people and sufficient number of engine room people should be there. Okay. Coming to taking over watch. अब यहाँ पर taking over watch as far as the cargo is concerned, port में taking over the watch है, and next is taking over a deck watch. So again, taking over a watch means you should not take over a watch if you are not fit to keep it, and obviously similarly the handing over guy should not hand over to you if he has reason to believe that you will not be able to keep the deck watch effectively. तो ऐसे में चीफ ऑफिसर को, मास्टर को बता दो. ये जनरल है, चाहे आप ब्रिज में हो, चाहे आप इंजन रूम में हो, चाहे आप डेक वॉच हो, कार्गो वॉच हो, एंकर वॉच हो. राइट? यू शुड नॉट बी टेकिंग ओवर अ वॉच or you should not be handed over a watch in case you are not
fit to keep the duty. Similarly यहाँ पे engine room का बोल रखा deck engineering watch के लिए. Now taking over a watch. आपने बहुत सारे क्या कहते हैं कार्गो वॉचेस की होंगी. टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर बहुत किया होगा पोर्ट में, राइट. तो सबसे पहले क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर, ड्राफ्ट क्या है, टाइम ऑफ हाई वाटर, लो वाटर अगर वहाँ पे है कैलकुलेट करो. मोरिंग्स को देखो कितनी मोरिंग्स हैं, 4+2 हैं, स्लैक है, टाइट है. एंकर्स क्या है, एंकर कवर्स लगा रखे नहीं हैं, स्पर्लिंग पाइप कवर्स वगैरह अगर एंकर यूज़ में नहीं है वो आपको करना है. वैसे भी ISPS के लिए, राइट. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि इंजन में काम चल रहा है, मतलब इमोबिलाइजेशन है इंजन का. ऑल वर्क परफॉर्म्ड ऑन द शिप, क्या क्या चल रहा है काम, किधर चल रहा है, कितने गैंग्स हैं जहाज पे, कहाँ पे लोडिंग हो रही है या कहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है, लोडिंग का सीक्वेंस क्या है, डिस्चार्जिंग का सीक्वेंस क्या है, होल्ड आई मीन टैंक्स की बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग उसका सीक्वेंस क्या है, राइट. एंड स्ट्रेसेस को ध्यान में रखते हुए देन ऑफ कोर्स सिग्नल्स आर डिस्प्लेड डे टाइम में. अगर कोई डेंजरस कार्गो लोड कर रहे हो तो उसके सिग्नल डिस्प्लेड हैं. आपने वो हॉइस्ट कर रखे हैं, कंपनी का फ्लैग. दिन के टाइम में योर कर्टसी फ्लैग्स, कंपनी का फ्लैग, ये सब हॉइस्ट करने पड़ते हैं, शाम को निकाल देने पड़ते हैं. एंकर नहीं, आपका जो गैंगवे है वो जेटी पर रेस्ट कर रहा है, नेट बराबर है, सेफ एक्सेस मिल रहा है लोगों को. मोरिंग लाइंस को अटेंड करोगे आप, राइट. देन फायर फाइटिंग के सिचुएशन क्या है, पोर्ट के क्या रेगुलेशंस हैं, मास्टर ने, चीफ ऑफिसर ने कोई स्टैंडिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन शिप टू शोर, शोर टू शिप, सेफ्टी ऑफ द शिप क्रू, ये सब, ये तो हमेशा ही रहेगा आपका. सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सेफ्टी ऑफ द शिप, एनवायरनमेंट, ये सब आपको देखना है. देन प्रोसीजर्स फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटीज इन केस ऑफ पोल्यूशन, इन केस ऑफ एक्सीडेंट. नोटिस लगा है कि किसको नोटिफाई करना है. नॉर्मली जो पायलट कार्ड आता है उस पर लिखा रहता है. एजेंट आता है, वो भी आपको एक चिट देखे जाता है कि इन केस ऑफ फायर कॉल है, इन केस ऑफ पोल्यूशन इसको कॉल करो, एक्सेट्रा, राइट. सो ये आपके हैं द थिंग्स यू शुड टेक केयर व्हेन यू आर टेकिंग ओवर. सेफ्टी मेजर, फायर प्रोटेक्शन का है. देन परफॉर्मिंग अ वॉच, अभी आप टेक ओवर कर रहे हैं, परफॉर्मिंग. सो मेक राउंड्स ऑन डेक, pay particular attention to the condition of the gangway, anchor chain, moorings. ड्राफ्ट चेक करना है, कितना कार्गो लोड हो गया है, कैलकुलेट करना है, कितना डिस्चार्ज का हो गया है, अंडर कील क्लियरेंस देखनी है, वेदर कंडीशंस देखनी है, सी स्टेट देखना है, कंप्लाई विद ऑल द रूल्स रेगुलेशंस. देन लेवल ऑफ वाटर इन द बिल्जेस, होल्ड्स, टैंक्स. मेक श्योर दैट ऑल पर्सन ऑन बोर्ड नो द लोकेशन ऑफ दिस थिंग, रिमोट और enclosed spaces. Exhibition of all the light signals. बैड वेदर में स्टॉर्म वार्निंग मिली है तो आपको क्या एक्शन लेना है, क्या तैयारी करनी है. पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए आपको करना है. सो दीज आर द लिस्ट दैट ऑल you have to do in case of what do you call performing a watch on deck. डेंजरस कार्गो आ रहा है तो उसके लिए ये स्पेशल सेक्शन है. सो नॉर्मल वॉच कीपिंग इन पोर्ट एंड particularly when carrying hazardous cargo. So ये आपका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, कुछ लोग, मतलब आई वुड से अबाउट 20% स्टूडेंट्स, वो खाली इसको लिखते हैं, ये वाले को, जबकि क्वेश्चन है कि प्रिपेयर, आई मीन हाउ विल यू टेक ओवर और परफॉर्म अ कार्गो वॉच इन पोर्ट, particularly when carrying hazardous cargo. मतलब नॉर्मल कार्गो वॉच का भी आपको लिखना है, पर्टिकुलरली अगर आप कार्गो या डेंजरस कार्गो तो उसके अलावा आपको और क्या करना है. इस क्वेश्चन को लोग जरा ठीक से समझ नहीं पाते, तो वो सोचते हैं कि सिर्फ हैजर्डस कार्गो के बारे में पूछा, उसी का लिख देते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है कि कार्गो वॉच कैसे रखोगे पोर्ट में, पर्टिकुलरली
खासकर तब अगर आप डेंजरस कार्गो लोड कर रहे हो। तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी एंड अगर आप डेंजरस कार्गो लोड कर रहे हैं तो उसके अलावा और क्या करना है। ठीक है, सो कोई भी डेंजरस कार्गो आप लेके जा रहे हो, हैज़र्ड एक्सप्लोज कोई भी हो, जो भी वो आपके जो 9 क्लासेस हैं उसमें से कुछ भी लेके जा रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू लोड दैट कार्गो। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस है, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर द कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको ले जा सकते हो, राइट। तो रेडी अवेलेबिलिटी ऑन बोर्ड ऑफ ड्यूलाइट क्वालिफाइड ऑफिसर्स। एक्सप्लोसिव्स, खासकर यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स भी लिखा है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। नॉर्मली जब ये लोड करते हैं एक्सप्लोसिव्स को तो इट्स अ डेंजरस कार्गो, मिलिट्री कार्गो है ये, तो तब आपके वहाँ पे मिलिट्री वाले आके लोड करेंगे ये, इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, राइट। शिप्स कैरिंग डेंजरस कार्गो other than bulk master shall take into account the nature and quantity of packaging storage of that। तो डेंजरस कार्गो आप तभी लोड कर सकते हो जब आपके पास डेंजरस कार्गो मैनिफेस्ट है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चीफ ऑफिसर के पास एक लिस्ट होती है जिसमें डेंजरस कार्गो डिस्क्राइब किया होता है, उसका केमिकल नेम, उसका जनरल नेम, फिर उसका कौन सा क्लास है, यूएन नंबर, क्लास ऑफ कार्गो 1 से लेकर 9 तक, देन MFAG नंबर, एमरजेंसी शेड्यूल नंबर कि इमरजेंसी में क्या करना है, शिपर कौन है, कंसाइनी कौन है, लोड पोर्ट क्या है, रिचार्ज पोर्ट क्या है, फिर उसकी लोकेशन डेंजरस कार्गो की कि शिप में वो कहाँ पे लोड किया जा रहा है, ऑन डेक, अंडर डेक, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज, अवे फ्रॉम अकोमोडेशन, थ्रू अकोमोडेशन, वो सब IMDG कोड में लिखा है। सो ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यू कैनॉट लोड डेंजरस कार्गो विदाउट द डेंजरस कार्गो का जो सर्टिफिकेट है, मतलब मैनिफेस्ट के बगैर। तो एजेंट जब डेंजरस कार्गो लोड करते हैं तो जो लोकल एजेंट होता है वो डेंजरस कार्गो का मैनिफेस्ट लेके आता है जहाज पे। आजकल ईमेल से पहले ही भेज देते हैं, भाई ये डेंजरस कार्गो हम लोड करना है, सो एंड सो लोकेशन में लोड करना है। इन एनी केस वो डेंजरस कार्गो का मैनिफेस्ट लेके आता है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें, कैप्टन उसको या चीफ ऑफिसर उसको साइन करेगा, इसका मतलब दे हैव एक्सेप्टेड इट। उसकी लोकेशन, उसकी क्वांटिटी, उसका क्लास नंबर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और तब उसी के बाद वो लोड किया जाएगा। जब तक कैप्टन ने, चीफ ऑफिसर ने साइन नहीं कर दिया वो लोड नहीं हो सकता है, ठीक है। और लोड होने के साथ फिर आपको एक पैकिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, डेंजरस कार्गो का पैकिंग सर्टिफिकेट। ओके, अब आपको ये मिल गया है, जब कार्गो जहाज पे आ रहा है डेंजरस कार्गो, यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें लेबलिंग ठीक से हो रही है। मतलब लेट्स से फॉर कंटेनर है, उसमें डेंजरस कार्गो उसके अंदर, तो उसके अंदर लेबलिंग सही से होनी चाहिए। मतलब पुराने जो भी लेबल है, लेट्स से उसके अंदर क्लास 4.1 एंड 4.3 का कार्गो है, तो कंटेनर के बाहर या बॉक्स के बाहर सिर्फ उन्हीं के लेबल लगे होने चाहिए जो कार्गो उसके अंदर है। कोई पुराना लेबल है वो निकाल देना है। समझो पहले उस कंटेनर क्लास 2 का कार्गो गया था या क्लास 3 का कार्गो गया था, तो उसको हटा देना है और उसकी जगह नया लेबल लगाना है। एंड लेबल हैज टू बी पुट ऑन ऑल द 4 साइड्स, सब जगह से लगाना है। सो दिस इज वन ऑफ द चेक्स दैट यू हैव टू डू डेंजरस कार्गो के साथ। फर्स्ट, मेक श्योर कि कार्गो मैनिफेस्ट है, कहाँ पे लोड किया है वो लोकेशन उसमें मेंशन की गई है, कौन सा कार्गो है, क्लास का, क्या वो क्लास का कार्गो आप अलाउड हो ले जाना, कितनी क्वांटिटी है, चेक कीजिए कि जो क्वांटिटी आपको डिक्लेयर कर रखी है इतना कार्गो ले जाना है, उतनी क्वांटिटी आपको अलाउड है ले जाना।
तो वो सब आपका जो डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस है फॉर द कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स उसमें मेंशन्ड है, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप। फिर उसकी लोकेशन देख ली कि लोकेशन सेफ है, राइट, एंड उसके बाद लोड करते हैं। ओके, सो दिस इज विथ कीपिंग वॉच इन पोर्ट। ये हमारा उतना नहीं है, ये फेज 2 में थोड़ा सा पूछ लेते हैं इसके बारे में, बट कीपिंग एन इंजीनियरिंग वॉच ये इंजीनियर्स के उसमें जनरली आता है, नॉट आवर्स, सो वी अवॉइड दिस। और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? और मैंने आपको बता दिया कि ये आपके वहाँ जो नोट्स हैं, हैंडआउट्स जो आपका है उसमें ऑलरेडी दे रखा है इसमें। एक मिनट फिर से और देख लो एक बार। हाँ, उसमें था ना ये सब, देखे थे ना कल हम। ओके जी, और कुछ करना चाहते हैं आप अभी?